Hello, good morning students. Welcome to my YouTube channel. Students, today I am going to teach you a new poem, that is A Bird Came Down the Walk. This poem is written by the great American poetess Emily Dickinson. So let's see. First of all, we should see some introduction of Emily Dickinson and also of the poem. Let's see. Emily Dickinson was an American poet best known for her strange personality and her frequent themes of death and morality. Emily Dickinson, as I told you, that she was an American poetess or American poet, and she is best known for her strange personality. Why she had strange personality? तो बच्चों आपको बताना चाहूँगा, strange personality इसलिए थी because her concern or her thoughts were related to problems of life, death, immortality, and she gave so much space to these points or these facts in her poems. That's why her poems become mystic, and in this way she is also known as a mystical poet या mystic poet. तो अभी हमने देखा कि एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोइटिस है and she is different from others for her strange personality and frequent use of the theme of death and mortality. It means वो अपने poems में, अपने works में frequently use करती थी the themes that are related, उन themes को जो कि किससे related हैं, death and mortality. Okay बच्चों. Next, although she was a prolific writer, only a few of her poems were published during her lifetime. Although she was a great poet or great writer, but during her lifetime, she published only few of her poems. बच्चों, एमिली डिकिंसन ने about 1800 poems लिखी, about 1800, but during her lifetime about 10 was published, only 10 ही published हो पाई. तो it means she was unknown when she were alive, मतलब वो ज़्यादा फेमस नहीं थी. she was not so much famous when she was alive, जब वो जिंदा थी तब वो ज़्यादा फेमस नहीं हुई. बजाय इसके, मतलब इसके बावजूद भी, डिस्पाइट बीइंग मोस्टली अननोन वाइल शी वॉज अलाइव, डिस्पाइट बीइंग मोस्टली अननोन वाइल शी वॉज अलाइव, मतलब जब वो जिंदा थी और उस समय वो काफ़ी कम फेमस थी, अननोन टाइप की पर्सन थी, बट इसके बावजूद भी, डिस्पाइट इसके बावजूद भी, शी इज़ रिगार्डेड एज one of the most important figures in American poetry. तो लाइफ टाइम में ज़्यादा फेमस नहीं होने के बावजूद भी वो जो अमेरिकन पोएट्स हुए या अमेरिकन जो राइटर्स हुए या अमेरिकन जो आर्टिस्ट्स हुए जो कि ज़्यादा फेमस थे, she was also one of those. तो वही चीज़ ये कह रहा है
या यही चीज़ आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि डिस्पाइट बीइंग मोस्टली अननोन व्हाइल शी वॉज अलाइव, शी इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन अमेरिकन पोइट्री. She is widely considered one of the most original and influential poets of 19th century. इसके बाद भी या इसके अलावा beside those qualities that I have discussed in above lines, she is widely considered one of the most original and influential poets of 19th century. मतलब अमेरिकन लिटरेचर में ज़्यादा फेमस नहीं होने के बावजूद भी अमेरिकन पोएट्स या अमेरिकन आर्टिस्ट्स में से जो फेमस थे ज़्यादा, उनमें से एक होने के साथ साथ शी वॉज मोस्ट ओरिजिनल एंड इन्फ्लुएंशियल पोएटेस या पोएट्स. वो उन पोएट्स में से एक थी जो कि ज़्यादा ओरिजिनलिटी लिखते थे और जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, ज़्यादा प्रभावशाली थे. मतलब 19th सेंचुरी में जितने भी पोएट्स हुए, उन पोएट्स में से जो ओरिजिनलिटी बेस्ड अपना वर्क्स लिखते थे और जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, उन्हीं में से एक एमिली डिकिंसन भी थी. क्लियर? नेक्स्ट, Dickinson's poetry was heavily influenced by the metaphysical poets of 17th century England. और बात करें उनकी पोइट्री की या उनके वर्क्स की, तो उनके वर्क्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका था? तो उनके वर्क्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मेटाफिजिकल पोएट्स था जो बिलोंग करते थे 17th सेंचुरी इंग्लैंड से. मतलब she was so much influenced by metaphysical poets of 17th century, and this influence was on her works also. ये जो इन्फ्लुएंस उसके ऊपर था मेटाफिजिकल पोएट्स का, यही इन्फ्लुएंस उसके वर्क्स पर भी था. किसका इन्फ्लुएंस था ये? मेटाफिजिकल पोएट्स जो कि 17th सेंचुरी के थे. तो बच्चों, इस पेज पे हमने एमिली डिकिंसन के बारे में पढ़ा कि एमिली डिकिंसन अमेरिकन पोएट थी और अपने स्ट्रेंज पर्सनैलिटी और फ्रिक्वेंट अलग अलग थीम्स के लिए कुछ ज़्यादा ही जानी जाती थी. और उसकी मेन जो थीम्स होती थी वो होती थी प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, डेथ, मॉर्टेलिटी, ऐसी चीज़ों के ऊपर अपनी मोस्ट ऑफ पोएम्स लिखती थी. और फिर हमने ये कहा कि वो अपने लाइफ टाइम के समय या अपनी लाइफ टाइम में वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई, क्योंकि उसने टोटल 1800 पोएम्स लिखने के बावजूद भी अपने लाइफ टाइम में उसने केवल 10 पोएम या 12 पोएम पब्लिश ही करवा पाई थी. बट फिर भी वो ग्रेट अमेरिकन पोएट्स या ग्रेट अमेरिकन आर्टिस्ट्स में या राइटर्स में से एक मानी जाती है. साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि वो 19th सेंचुरी के उन पोएट्स में से भी एक मानी जाती है जो ज़्यादा ओरिजिनलिटी पे लिखते थे या ज़्यादा ओरिजिनल थे और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे. साथ ही साथ हमने ये बताया कि एमिली डिकिंसन के ऊपर या एमिली डिकिंसन पर मेटाफिजिकल पोएट्स जो 17th सेंचुरी के थे उनके ज़्यादा इम्पैक्ट थे. साथ ही साथ ये इम्पैक्ट उसके वर्क्स में भी देखने को मिलता है. अब थोड़ा सा इंट्रो हम उसके इस पोएम के बारे में देख लें जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं. तो अ बर्ड केम डाउन द वॉक इज़ अ शॉर्ट पोएम बाय एमिली डिकिंसन that tells of the poet's encounter with a worm eating bird. ये जो पोएम है कौन सी? द बर्ड केम डाउन द वॉक, एक छोटी सी पोएम है. किसके द्वारा लिखी गई? एमिली डिकिंसन के द्वारा. और इस पोएम में किसके बारे में बताया गया है? पोएट्स या जो पोएटेस है वो अपने एनकाउंटर मतलब सामना करना या फेस करना या किसी से मिलना. ये इनकाउंटर पुलिस वाला इनकाउंटर नहीं है. पुलिस वाला इनकाउंटर भी आप अगर मानेंगे तो देखिए इनकाउंटर सेम है. इनकाउंटर क्या होता है कि सामने कोई जा रहा है और उसको शूट करना पुलिस के लैंग्वेज में. तो यहाँ पे भी इनकाउंटर
आप फ्रंट साइड से ले सकते हो, या किसी से सामना करना है, किसी से मिलने की बात भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जो पोएटेस ने एनकाउंटर वर्ड यूज किया है, या पोएटेस ने जो बताया है इस पोएम में, जो डिटेल हमारे सामने प्रेजेंट की है, वो बताती है कि वन डे शी फेस्ड या शी वॉज अ बर्ड दैट केम इनटू हर ग्राउंड एंड शी एक्सप्लेन्ड ऑल द images or yeah all the incidents that happened before her eyes। तो वहाँ पे बर्ड आती है उसके गार्डन में, और गार्डन में आने के बाद जो जो भी इंसिडेंट्स वहाँ होता है उन सारी चीज़ों को वो अपने पोएम में एक्सप्लेन करती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं कि ये पोएम क्या बताती है कि पोएट्स एनकाउंटर विद अ वर्म ईटिंग बर्ड। पोएट का मिलना किससे? एक वर्म ईटिंग, कीड़े खाने वाले बर्ड से। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1891 इन द सेकेंड कलेक्शन ऑफ डिकिंसन्स पोएम। ये जो पोएम है ये फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुई थी 1891 में, और कहाँ पब्लिश्ड हुई थी? एमिली डिकिंसन्स के पोएम्स के सेकेंड कलेक्शन में। आगे देखें, द पोएम कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच। ये जो पोएम है ये 5 स्टेंजाज में डिवाइड है, 5 स्टेंजाज में डिवाइड है, एंड ईच स्टेंजा कंटेन्स 4 लाइन्स। हर स्टेंजा में कितनी लाइन्स है? 4 लाइन्स, मतलब 4 लाइन्स के 5 स्टेंजाज हैं, तो टोटल कितनी लाइन्स हो गई? 20 लाइन्स। द राइम स्कीम इज ABCB। तो हमने राइम स्कीम आपको मीटर पढ़ाते वक्त या राइम पढ़ाते वक्त भी बताया था लिटरेचर में। वैसे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा भी होगा। तो हमने बताया कि 4 लाइन्स का स्टेंजा है, तो 4 लाइन स्टेंजा में राइम स्कीम कितने होंगे? 4 ही होंगे। तो ये बता रहा है राइम स्कीम क्या है इनकी? ABCB। द पोएम इज लार्जली रिटन इन आयम्बिक ट्राइमीटर। The poem is largely written in iambic trimeter। मीटर पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पेंटामीटर मतलब ये हो गया जिस लाइन में 5 फुट हो, और 1 फुट में मैंने आपको बताया था 2 सिलेबल होते हैं, एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड। तो यहाँ ट्राईमीटर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक लाइन में 3 फुट होंगे, और हर 1 फुट में एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। ओके बच्चों, आगे देखिए। इन दिस पोएम शी शेयर्स हर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ बर्ड दैट केम डाउन द फुटपाथ ऑफ हर होम। अभी मैंने बताया था कि इस पोएम में उसने किस इंसिडेंट को या किस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि उसने एक बर्ड को देखा जो उसके गार्डन में जो फुटपाथ होता है जिस पे हम टहलते हैं या चहलकदमी करते हैं, उस पे एक बर्ड अपने उड़ान के दौरान वहाँ पे आके बैठ जाती है, और उसके ऑब्जर्वेशन को, उसके निरीक्षण को या उसके इंसिडेंट्स को जो भी उसकी आंखों के सामने होता है उसको एक्सप्लेन करती है वो इस पोएम में। दिस पोएम showcases the poet's power of observation and juxtaposes various elements of nature। तो ये जो पोएम है ना, एक क्या है, शोकेसेस मतलब हो गया कि एक चित्रण है, आप इस तरह से ऐसे कह सकते हो कि एक पिक्चर है, एक प्रेजेंटेशन है। किस चीज़ का प्रेजेंटेशन है ये? पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पोएटिस के ऑब्जर्वेशन के पावर को, ऑब्जर्वेशन के पावर को कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करता है, माइन्यूटली उसके हर एक इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को वो देख करके उसके बारे में एक्सप्लेन करना या उसके बारे में लिखना, ये उसका पावरफुल ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो ये जो पोएम है ये पोएटेस एमिली डिकिंसन के ऑब्जर्वेशन पावर को एक्सप्लेन करती है, और साथ ही साथ ये पोएम नेचुरल एलिमेंट्स को भी एक्सप्लेन करती है या
नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में भी हमें जानकारी देती है। तो हमने पोएटिस के इंट्रोडक्शन को देख लिया, अब हमने पोएम के इंट्रोडक्शन को भी देखा कि एक पोएम है, छोटी सी पोएम है जो एमिली डिकिंसन ने लिखा है। और एक दिन उसके गार्डन में फुटपाथ पर एक पक्षी उड़ते हुए आ जाती है, और वो पक्षी बैठने के बाद उस पक्षी के द्वारा जो भी मूवमेंट्स होते हैं, जो भी इंसिडेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, या जो भी पक्षी अपने मूवमेंट्स के दौरान करता है, उन सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करती है माइन्यूटली और उसको एक्सप्लेन करती है। वही सारी डिटेल्स इस पोएम में हमें देखने को मिलेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसकी पोएम्स को स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे हम उसकी उस ऑब्जर्वेशन को या उसके डिटेल्स को 1 बाय 1 करके देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।